Hi friends, welcome on MD Institute YouTube channel. Today we discuss quadrants. This is a very important topic for SSC railway aspirants, and also this is very important for 9th, 10th, 11th, 12th student. So let's we discuss quadrant. Basically we draw a quadrant like this. In this we draw four quadrants. This is first quadrant, this is second quadrant, and this is third quadrant, and this is fourth quadrant. These are the four quadrants. In first quadrant the value will be come in between 0 degree to 90 degree. Those values greater than 0 degree and less than 90 degree come in first quadrant, and in second quadrant those value greater than 90 degree and less than 180 degree, these values come in second quadrant, and in third quadrant those values greater than 180 degree and less than 270 degrees will come in third quadrant, and in fourth quadrant those values greater than 270 degree and less than 360 degrees. These values come in fourth quadrant. These lines show x-axis and these lines show y-axis. Okay. In first quadrant, students, in first quadrant we write in this those values positive or negative. We write here after school to college, means A denote all the trigonometric values in first quadrant is positive, but in second quadrant only sine and cosec theta is positive, and in third quadrant tan theta and cot theta is positive, and in third quadrant cos theta and secant theta is positive. This line indicates 0 degree and 360 degree, this point, and this point indicates 90 degree, this point indicates 270 degree, and this this point indicates 180 degree, and this point indicates 270 degree. Okay. After that, once again we discussed in first quadrant all values is positive, in second quadrant sine and cosec positive, and in third quadrant tan and cot positive, and in fourth quadrant cos theta and secant theta is positive. Now we discuss changement when sin theta is changed into cos theta, and cos theta is changed into sin theta, and tan theta is changed into cot theta, और cosec theta is changed into secant theta. ये वैल्यू तभी चेंज होती है जब 90 डिग्री प्लस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा में हमें निकालना हो, या 270 डिग्री प्लस थीटा या 270 डिग्री माइनस थीटा में हमें एंगल निकालना हो, तभी साइन और कोस, कोस साइन में और टैन कोट में, कोसेक और सेक में चेंज होगा।
इनके अलावा 180 और 360 में ये चेंजमेंट नहीं होगा। ओके, लेट्स अब हम आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम वैल्यू निकालते हैं। पहले मैंने यहाँ लिखी हुई है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वी डिस्कस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट साइन 90 माइनस थीटा। Here 90 minus theta is right because in first quadrant value will come less than 90 degree and greater than 0 degree. So sin 90 minus theta is changed into cos theta because these values in 90 minus theta. So sin change into cos theta and cos change into sin theta. Okay. And tan 90 minus theta is changed into cot theta. Okay, and cot 90 minus theta is changed into tangent theta, and cosec 90 minus theta is changed into secant theta, and secant 90 minus theta is changed into cosec theta. After that we put a positive or negative sign. We write in first quadrant all values is positive. In first quadrant all values is positive and this value is come in first quadrant. First quadrant में बच्चों कौन कौन सी वैल्यू आती है? 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से कम वाली। तो ये हमारी जो वैल्यू है 90 डिग्री से कम है, तो इसलिए इन सब के आगे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन। ठीक है जी। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। In second quadrant value will come greater than 90 degree and less than 180 degree. Okay, so first of all sin 90 plus theta is changed into cos theta because value is 90 plus theta. तो साइन जो चेंज होएगा वो किस में हो जाएगा बच्चों? cos थीटा में। cos जो चेंज होता है वो किस में होता है? sin थीटा में। और सेकेंड किस में चेंज होता है? यहाँ से हम देख सकते हैं कोसेक में। और कोसेक किस में चेंज होएगा बच्चों? सेकेंड थीटा में। और टेंजेंट थीटा किस में चेंज होएगा? कोट थीटा में। और कोट किस में चेंज हो जाएगा? टेंजेंट थीटा में। अब हम इसके आगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने क्या लिखा है? साइन और कोसेक इज पॉजिटिव, बाकी सभी वैल्यू क्या होंगी? नेगेटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, तो यहाँ पे साइन है तो साइन के कारण इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है? कोसेक वाली। तो वी देयर इज अ कोसेक 90 प्लस थीटा, सो दिस वैल्यू इज आल्सो पॉजिटिव एंड अदर ऑल द वैल्यूज आर नेगेटिव, राइट? Now we discuss 180 minus theta. These values also come in second quadrant because it less than 180 degree. So these value is write 180 minus theta. So those values come 180 and 360. Here we write 180 or 360. Then this sign is does not change into cos. So there is we write same thing sin थीटा। जो यहाँ पे लिखा है वही हम लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री लिखा है। अगर यहाँ पे 180 या 360 डिग्री लिखा हो तो जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे। अगर यहाँ पे 90 और 270 लिखा हो तब हम ये साइन को कोस में, कोस को साइन में, उसमें हम चेंजमेंट करते हैं। इसके अलावा हम चेंजमेंट नहीं करते। तो यहाँ जो जो वैल्यू लिखी है वही लिख देंगे हम। कोस है तो कोस ही लिख देंगे, सीकेंट है तो सीकेंट ही लिख देंगे बच्चों, कोसेक है तो बच्चों कोसेक ही लिख देंगे, और टेन है तो बच्चों टेन थीटा ही लिख देंगे, और कोट है तो कोट थीटा ही लिख देंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे साइन, हमने साइन लगाने हैं। तो ये जो वैल्यू है सेकंड क्वाड्रेंट की है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, बाकी सब वैल्यू हैं जो वो नेगेटिव आ जाएगी। अब हम बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आती हैं वो कौन कौन सी वैल्यू आती हैं? वो जो वैल्यू आती हैं वो आती हैं 180 से बड़ी वैल्यू
और 270 से छोटी वैल्यू, दोज वैल्यू कम ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री कम इन थर्ड क्वाड्रेंट. ओके, लेट्स वी डिस्कस अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट साइन 180 प्लस थीटा एंड ऑल द वैल्यूज इज 180 प्लस थीटा. तो हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, अगर यहाँ पे 90 और 270 हो तभी साइन कोस में और कोस साइन में और अदर वैल्यूज चेंज होती हैं, नहीं तो जो वैल्यू यहाँ लिखी होती है वही हमने यहाँ पे लिख देनी है. तो यहाँ पे हमने साइन थीटा ही लिख देना है और यहाँ पे कोस थीटा ही लिख देना हमने. ऐसे ही टैन थीटा लिख देंगे, कोट थीटा लिख देंगे, सीकेंट थीटा लिख देंगे और कोसेक थीटा. अब हमने साइन लगाने हैं भाई, कौन सा साइन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा. अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं क्या क्या वैल्यू पॉजिटिव है. टैन पॉजिटिव है और कोट पॉजिटिव है. अब देखते हैं यहाँ पे टैन किस में है, यहाँ पे टैन है तो इसकी वैल्यू यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी. और देखते हैं कोट कहाँ है, ये कोट है तो यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी. इसके अलावा सभी वैल्यू के आगे हम नेगेटिव साइन लगा देंगे. ओके, अब 270 से कम वाली वैल्यू हमने लिखी हुई है क्योंकि ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आती है. तो जब भी यहाँ पे 90 और 270 हो तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो साइन बच्चों किस में चेंज हो जाता है, कोस थीटा में चेंज हो जाता है. कोस किस में चेंज हो जाता है बच्चों, साइन थीटा में चेंज हो जाएगा. ऐसे ही टैन किस में चेंज हो जाएगा, कोट थीटा में चेंज हो जाता है. और कोट किस में चेंज हो जाता है बच्चों, टेंजेंट थीटा में. ऐसे ही सीकेंट किस में चेंज होता है, सेकेंड किस में चेंज होता है बच्चों, कोसेक में. और कोसेक किस में चेंज होता है बच्चों, सेकेंड थीटा में. अब हमें पता है भाई थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं. तो यहाँ पे टैन है और यहाँ पे कोट है, इनके आगे हम पॉजिटिव साइन लगा देते हैं. बाकी सभी के आगे हमें नेगेटिव साइन ही लगाना पड़ेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कोट ही पॉजिटिव होता है. अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ जाते हैं. अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं हम लोग. अब फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों देखो कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कोस और सेक पॉजिटिव होता है. और जो वैल्यू 270 से ज़्यादा और 360 से कम होगी वही वैल्यू हम यहाँ पे लिख पाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो हमने जो वैल्यू लिखी है वो 270 से 270 से ग्रेटर लिखी है. तो क्योंकि यहाँ पे 270 है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, कोस थीटा में. ऐसे ही कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में. ऐसी टैन किस में चेंज हो जाएगा, कोट थीटा में. और कोट किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, टैन. तो दोस्तों अब सेक 270 प्लस थीटा है तो सेक किस में चेंज होता है दोस्तों, कोसेक थीटा में. इसी प्रकार कोसेक किस में चेंज होता है बच्चों, सेक थीटा में. अब हमने जो पॉजिटिव लगाना है वो देख लेना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक ही पॉजिटिव होता है. तो ये कोस है तो हम इसके आगे पॉजिटिव लगा देंगे. और फिर सेक देख लेते हैं, सेक है ये तो इसके आगे पॉजिटिव लगा देते हैं. बाकी सभी के आगे हमें नेगेटिव ही लगाना पड़ेगा. उसके आगे देख लेते हैं बच्चों अभी. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक वो वैल्यू भी आती है जो 360 से कम हो और 270 से ज़्यादा हो. प्लस वाली तो हमने यहाँ पे लिख ली. अब नेगेटिव वाली देखते हैं. क्योंकि यहाँ पे 360 है इसलिए जो साइन है वो साइन में ही रहेगा, जो कोस है वो कोस में ही रहेगा, टेंजेंट है वो टेंजेंट में ही रहेगा और कोसेक है वो कोसेक में ही रहेगा, सेक है सेक में ही रहेगा और जो कोट है वो कोट में ही रहेगा. अब हम इनके आगे साइन लगाते हैं. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कोस और सेक. तो कोस के आगे वाली हम माइनस लगा देंगे, प्लस लगा देंगे सॉरी. और सेक के आगे वाली है वो प्लस लगा देंगे. बाकी सब के आगे हमें नेगेटिव ही लगाना पड़ेगा. तो थैंक्स गाइस टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज फॉरवर्ड, like and subscribe this channel. Thank you.